Hello everyone, welcome to another video of comprehensive biology learning. We are discussing the concepts of biology related to class 10th. We are dealing with point 6.4.1 today, that is transportation in human beings. If you are new to this channel, please follow the channel from the very first video ताकि आप एक link को establish कर सकें. Let's get started with the concept. We are going to deal with a transportation in human beings today. So we must know what is the meaning of transportation. Transportation means the movement of necessary substances from one part of the body to other. For example, transport of oxygen from lungs to different parts of our body. सी हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस चलते हैं. हर प्रोसेसेस के कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं एंड कुछ बाय प्रोडक्ट्स होते हैं. उन रिएक्टेंट्स को सही जगह पे पहुंचाना, बाय प्रोडक्ट्स को बाहर पहुंचाना, ये सब काम ट्रांसपोर्टेशन का है. फॉर एग्जांपल, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, वी नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ लंग्स में जा रहा है. देन हाउ इज़ every other cell in the body getting the oxygen? by the process of transportation. मतलब ऑक्सीजन लंग्स से बॉडी के बाकी पार्ट्स में जा रहा है. सिमिलरली, क्योंकि हमारे सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं एंड इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इनसाइड द सेल, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुँचाया जाता है so that the carbon dioxide can be left out in the air. That is how transportation of carbon dioxide and oxygen takes place in our body. Blood. Blood is the transporting medium. It carries oxygen, carbon dioxide, waste etc. हमारी बॉडी का जो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, जो सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, उसे वो ब्लड है. ब्लड क्या क्या कैरी कर सकता है? ऑक्सीजन, carbon dioxide, waste and many other substances. Now what is blood made up of? Blood is made up of two components. Plasma, which mostly consists of water, and various cells जिनका हम नाम जानते हैं, जैसे कि red blood corpuscles, white blood corpuscles, platelets. All these are the cellular components of the blood. Now अब हमारे पास ब्लड है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, लेकिन कोई एक ऐसा पंप होना चाहिए जो ब्लड को बाकी पार्ट्स तक भेज सके. जैसे कि अगर हमें वाटर को एक टैंक से दूसरे स्मॉलर टैंक में पहुंचाना होता है, सो वी नीड अ मोटर फॉर इट, ताकि पानी एक टैंक से दूसरे टैंक में जा सके. सिमिलरली इन अवर बॉडी, ब्लड कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन डायरेक्टली. इट नीड्स अ पावरफुल पंप जो कंटिन्यूअसली ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सके. दैट पंप इज़ नथिंग बट द हार्ट. Heart is also known as the muscular pump of our body. It has got 4 chambers, means it is divided into 4 parts. 2 atria or auricles and 2 ventricles. The upper 2 parts are known as atria and the lower 2 parts are known as ventricles. The left part of the heart receives oxygenated blood. Oxygenated blood means blood which has got oxygen in it. Right side of the heart receives deoxygenated blood. It means the blood that contains carbon dioxide. तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को समझने की कोशिश करें, वी हैव अंडरस्टूड दैट हार्ट इज़ अ मस्कुलर पंप एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स. वी कैन सी ओवर हियर 1, 2, 3, 4. The upper 2 chambers are known as atria, singular is atrium, and the lower 2 chambers are known as ventricles. Okay, the left side of the heart has got left atrium and left ventricle. Right side of the heart consists of right atrium and right ventricle. हमने थोड़ी ही देर पहले पढ़ा, लेफ्ट साइड में जो भी ब्लड आएगा इट विल हैव ऑक्सीजन इन इट. राइट साइड में जो भी ब्लड आएगा इट विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड इन इट. सी वी हैव डिस्कस्ड कि ब्लड हार्ट में आ रहा है या फिर हार्ट से बाहर जा रहा है, तो उस ब्लड को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें पाइपलाइंस की ज़रूरत पड़ेगी. उन पाइपलाइंस को हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मीन्स दे ऑलवेज कैरी ब्लड विथ ऑक्सीजन, एक्सेप्ट वन आर्टरी जो कि पल्मोनरी आर्टरी है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे.
Veins always carry blood which is filled with carbon dioxide एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। सो हम ये कह सकते हैं कि आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करती है इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखें तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में दो स्मॉल वॉल लाइक स्ट्रक्चर हैं, दो ऐसे गेट जैसे स्ट्रक्चर है जिन्हें हम वाल्व्स कहते हैं, VALVES वाल्व्स। ये ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करने में हेल्प करते हैं ताकि ब्लड बैकवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो ना करे, इसीलिए ये वाल्व्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। The left atrium receives a pulmonary vein। लेफ्ट एट्रियम में जो वेन आती है उसे हम पल्मोनरी वेन कहते हैं और यहाँ से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है जिसे हम एओर्टा कहते हैं। ओके, सिमिलरली अगर हम राइट की बात करें, राइट साइड की, तो राइट एट्रियम में दो वेन्स आती हैं जो कि हैं वीना कावा, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, जो कि हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स से आती हैं एंड दे पोर देयर ब्लड इन द राइट एट्रियम। वो ब्लड फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है और यहाँ से एक आर्टरी निकलती है जो दो पार्ट में बाइफरकेट कर जाती है, विच इज़ नोन एज द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी ऑलवेज मीन्स रिलेटेड टू लंग्स, so if the vein comes from lungs it will be termed as pulmonary vein. If the artery goes to the lungs then it will be termed as pulmonary artery. ये सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। हार्ट का कंटिन्यूअस रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, मीन्स हार्ट कंटिन्यूअसली अपने आप को बीट करता रहता है ताकि ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता रहे। हाउ दैट प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन टेक्स प्लेस दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।